Dear students of BTech second year civil branch, I am Dr. Rohit Prasad, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamil Devi Group of Institute Indore. I once again welcome to all of you for today, the first lecture on unit number 3. After 7 minutes to 8 minutes, we start our today lecture. Seventeen 21. Roll number 29. Vijay Chauhan, 53. Eighteen 4. 18 and 4. Number 33. Mahkan Airwal. RG Jaiswal. 46. Shekhar Chauhan. 52. 28.
Sir, 53. 35. Roll number 7. 34. Sir, 53 लगाई sir. Number 34. After 4 minutes, I will start our today's session based on the third unit, first topic, first method as a part 1 of numerical techniques for solving first order and first degree ordinary differential equation with initial condition. Roll number 54. Roll number 31. Roll number 52. We already doing. 22. 56. सर Roll आपकी number आवाज नहीं आ 22. Roll number 15. Gaurav Chauhan, why you come late? रही 49. विजय कटरे.
Yes. Now I'm calling your attendance. Then I will share your the screen. Mukesh, 34. Okay. Dear students of BTech second year, I am Dr. Rohin Parsai, Associate Professor of Mathematics. Roll number 30, 16. Sir, roll number 7. Just a minute. Yes, your lecture, your attendance is complete. Today, I call your attendance. Roll number 1, roll number 4, roll number 7, roll number 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 30, 42, 46, Sir, 7. 49, 52, 53, 54, 56. Sir, roll number 7. हो गया बेटा आपका. So I am Dr. Rohin Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamni Devi Group of Institution Indore. So I welcome to all of you. (41) Ritik Sharma. Sir, 16. 38. Hello. Sir, 16. Roll number 16. Today our discussion based on for solving ordinary differential equation by Taylor series method. Most of you acquainted with Taylor series as you studied in first semester in unit 1 of differential calculus. First of all, we understand the basic of this as an introduction part. Many problems in engineering tell me, Vishnu. Yes, Vishnu Chauhan. यस सर. ये क्या हो सर रहा है? कल सर रिलैक्सेशन मेथड में कुछ डाउट था कल का. हाँ, मैं आपको टेलर सीरीज मेथड कंप्लीट करा के वापस वो स्लाइड को लास्ट की टेबल को वापस ओपन करूंगा. ठीक है? यस सर. अभी इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम लोग. Many problems in Okay, engineering and science can be formulated into ordinary differential equations satisfying certain given conditions. If these conditions are prescribed for one point only, then the differential equation together with the condition is known as initial value problem. So जो हमारे पास का जो प्रॉब्लम होगा वो इनिशियल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही है होगा, जिसमें
केवल एक बाउंड्री कंडीशन दी होगी जिसको अपन इनिशियल कंडीशन बोलते हैं. इफ द कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर 2 और मोर पॉइंट्स देन द प्रॉब्लम इज टर्न्ड एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. तो जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे. दैट इज हाउ कैन यू सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम related to partial differential equation, that is the numerical solution of partial differential equation. अभी जो हम इस पार्ट 1 में यूनिट 3 के जो स्टडी कर रहे हैं वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, उसकी मेथड सीखेंगे, कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स हैं. तो अब हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं. ए लिमिटेड नंबर ऑफ these differential equations, a limited number of these differential equation can be solved by analytical methods. Hence, numerical methods play a very important role in the solution of differential equation. So, we shall discuss some of the following methods for obtaining the numeric solution of first order and first degree ordinary differential equation. आपने फर्स्ट सेमेस्टर की वजह सेकंड सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में आपको मैंने एनालिटिकल मेथड से समझाया था. अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड सीख रहे हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था, उसकी टेक्निक्स को सीखी थी. उसमें सबसे पहली मेथड हमारे कोर्स में है वो टेलर सीरीज मेथड. मतलब जो आपने टेलर की जो सीरीज पढ़ी है उसको हम यूटिलाइज करके फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं. फिर दूसरी आएगी आपकी यूलर्स मेथड. जो यूलर्स ने जनरेट की है उसको यूलर्स मेथड कहते हैं. फिर तीसरे नंबर की आपके सामने आएगी वो है मॉडिफाइड यूलर मेथड. यूलर्स ने मॉडिफाई किया इसलिए उसको यूलर मॉडिफाइड मेथड कहते हैं. और फिर इसके बाद मिल्ले नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ना केवल मेथड को अपडेट किया है साथ में उसको सिंप्लीफाई भी किया है, इसलिए इस मेथड का नाम मिल्ले प्रेडिक्टर मेथड्स भी रखा गया है. ये हमारी फोर्थ मेथड है. फिर इसके बाद हम रुंजे कुट्टा की मेथड को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद 6 नंबर की जो मेथड है वो है एडम्स बेस फोर्थ मेथड को पढ़ेंगे. तो ये हमारे इस कोर्स में इस पार्ट 1 है, इस यूनिट नंबर 3 का ये पार्ट 1 है जिसमें हमें ये 5-6 मैथमेटिकल टूल्स हमें सेम टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करना है, अप्लाई करना है. आपको एग्जामिनर कभी कभी मेथड का नाम देता है, कभी कभी मेथड का नाम नहीं देता है. चॉइस अपनी होगी, आप अपने चॉइस से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे. तो इस पार्ट में इस सेक्शन में हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम होगा वो इस तरह के पैटर्न का होगा. आप सभी को मालूम है व्हाट इज दिस प्रॉब्लम. कोई मुझे बताएगा ये प्रॉब्लम क्या होता है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? यस सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर. स्क्रीन पे पहला ही पेज दिख रहा है अभी तक. फर्स्ट पेज दिख रहा है स्क्रीन सर. स्क्रीन पे फर्स्ट पेज ही दिख रहा है. स्क्रीन का फर्स्ट पेज दिख रहा है बस. हाँ बेटे वो भी नहीं दिख रहा सर. स्क्रीन नहीं सर स्क्रीन चल रहा है. एक मिनट रुकिए. क्या हाँ एक मिनट रुकिए बेटे, एक मिनट रुकिए. क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए, थोड़ा लाउडली बोलिए. पार्डन प्लीज. सर स्क्रीन पे फर्स्ट पेज ही दिख रहा है. फर्स्ट पेज दिख रहा है बस. वो एक मिनट रुकिए, टॉपिक 1 लिखा हुआ. एक मिनट रुकिए, फिर से शेयर कर रहा हूँ एक बार. अटेंडेंस ले ली. अटेंडेंस ले ली बेटे. फिर से मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. एक मिनट रुकिए. ये पहला पेज था, ठीक है? एम आई राइट? ये पहला पेज दिखा इसमें. उसके पहले वाला कवर पेज था. ये मेरा कवर पेज है बेटे. अब इसके बाद फिर मैंने ये दूसरा पेज आपको इसका पहला लाइन शो किया है. हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स. अब दिख रहा है? बोलिए, कोई भी बोलिए.
नो सर, नहीं दिख रहा। है? नो नहीं सर, दिख दिख रहा। रहा है सर। नो सर नहीं दिख रहा। दिख रहा होगा बेटा, ऐसा गलत बात है। जिनका दिख नहीं रहा है उनका अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। मेरा पूरा सर, इंटरनेट किसी को भी नहीं कनेक्शन दिख रहा। प्रॉपर मिल रहा है। इस सर, टीम को आपकी फोटो हाँ, सर दिखाई दे किसी रही को है। भी नहीं दिख रहा। हाँ ये किसी को भी नहीं दिख रहा। मैं कह नहीं सकता ओके, है ओके, इसके बारे ओके, में, ओके। क्योंकि ये क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैंने मेरे तरफ से पूरा क्रॉस चेक कर लिया है। दोबारा स्क्रीन आपके सामने शो किया है, ठीक है। आप अपने गुड इंटरनेट मॉर्निंग। कनेक्शन को ध्यान से देखिए, और स्क्रीन का आपने कहीं हाइड कर दिया होगा शो होने का ऑप्शंस, कहीं कुछ सर, गुड प्रॉब्लम मॉर्निंग। है, आप उसको ध्यान से देखिए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, Good वेरी गुड morning, मॉर्निंग सर। Sir, good morning. I hope we are not seeing the screen. Did you share the screen, sir? हाँ, स्क्रीन तो मैंने सर दोबारा शेयर किया है, जस्ट मिनट। I will let you know. Please share the screen. I will let you know. यस सर। देखिए सर, ये फर्स्ट पेज है स्क्रीन का मेरा। दिखा सर? नहीं सर, अभी शेयर नहीं हुआ। अच्छा सर, क्या हो रहा है इस समय? एक मिनट रुकिए सर, वापिस इसको भेज जाता हूँ, 2 मिनट सर। एक मिनट रुकिए सर। यस सर, अब फिर से स्क्रीन कर रहा हूँ आपके सामने शेयर सर। आपका फोटो मुझे दिख रहा है सर स्क्रीन पे, विजिबल हो रहा है सर हाँ, मेरा? प्लीज शेयर द स्क्रीन। यस सर। पीपीटी आप शेयर कर लीजिए। I will confirm sir. it. Okay, sir? जी सर। नाउ इट इज करेक्ट सर? हाँ, अब पीपीटी ओपन हो गया सर। जी जी, ओके सर। Yes sir. Please continue, sir. Okay. It's visible now. Thank you, sir. Okay, it is our objective of this part 1 of unit 3. So I have been share you once again. I recall it. So we want to see about the numerical solution to ordinary differential equation by numerical techniques as numerical methods. So many problems. So first of all, we see why we studying this, or which type of problem is this. So many problem in engineering and science can be formulated into ordinary differential equation satisfying certain given condition. जैसे आपके पास सर्किट इक्वेशन है, सर्किट थ्योरी है, एलसीआर सर्किट है, तब आपको यदि उसकी इक्वेशन फॉर्म में जनरेट करना है, वोल्टेज ईएमएफ कैलकुलेट करना है आपको, तो उसके लिए आप एक इक्वेशन फॉर्म लिखते हैं, इक्वेशन में बनाते हैं, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सर्किट, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में सर्किट इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसको गणित की भाषा में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसको मैंने आपको M2 के समय भी आपको बताया था। M2 की हमने फर्स्ट सेकेंड यूनिट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही सीखी थी, जिसमें कई तरह के हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए थे, जिसको हमने सॉल्व किया था। 54 का तो हो गया अटेंडेंस, आई थिंक सो। देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम बाय व्हिच दे विल आउट। ओके, सो a limited number of these differential equation can be solved by analytical methods. Hence numerical methods play a very important role in the solution of differential equation. So what are various methods? Let me see. So we shall discuss some of the methods for obtaining numerical solution of first order and first degree ordinary differential equation. One of them is Taylor's. पहली जो मेथड है वो टेलर्स ने जनरेट की थी, इसलिए इसको टेलर सीरीज मेथड कहा जाता है। दूसरी टेक्निक का नाम है यूलर्स, इसको यूलर्स मेथड कहते हैं। तीसरी टेक्निक आ रही है आपके सामने, मॉडिफाइड मेथड यूलर की। यूलर ने मॉडिफाई भी किया है, क्योंकि जब हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को तो उसका सोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, इतना बेटर नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसलिए उसको यूलर्स ने मॉडिफाई किया, इसलिए इसका नाम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हो गया, जो कि तीसरे नंबर की है। फिर चौथे नंबर की है मिलनेस की। मिलने नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, जिसने मिलनेस ने ना केवल सोल्यूशन फाइंड किया, उसको करेक्ट भी किया, इसलिए इसका नाम प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड हो गया।
फिर इसके बाद रुंजे और कुट्टा नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मिलके रुंजे कुट्टा मेथड भी डेवलप की है, जिसको 5th नंबर की मेथड का नाम हो गया रुंजे कुट्टा मेथड। फिर इसके बाद की जो लास्ट मेथड है वो एडम्स और बेस्फोर्ड की मेथड है। एडम्स और बेस्फोर्ड नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मेथड डिस्कस की, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया है, जिसको मैं आपको 1 बाय 1 करके कमिंग लेक्चर्स में आपको ये 6 मेथड एक एक करके समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली जो मेथड आ रही है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेलर सीरीज। तो मैं आपको यहाँ पर पहली स्टेप में ये स्टार्ट करना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम आपके सामने लिखा है, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर में भी इस तरह का प्रॉब्लम लिखा होता था, जिसको आप लोग कितनी मेथड से सॉल्व करते थे। उसके पहले आप ये पहचानते थे, आइडेंटिफाई करते थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है, इसको कहा जाता है, दिस इज फर्स्ट टाइम किया है हमने रेट ऑफ चेंज, पहली बार कैलकुलेट किया, इसलिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। और आपके सामने फंक्शन है x और y का, जिसमें x आपका चूंकि डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और न्यूमरेटर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब भी डिफरेंट इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने दिखता है तो आप न्यूमरेटर वाले वेरिएबल को डिपेंडेंट लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल को इंडिपेंडेंट लेते हैं। और इसके साथ आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। इसका मतलब यह है कि जब इनिशियल सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, इनिशियल सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, इनिशियल सोल्यूशन मतलब जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है y 0 है। इस तरह से आपका कोई भी ये प्रॉब्लम इस कैटेगरी का दिया हो सकता है, वो आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। एम राइट? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब टेलर्स ने अपने टेलर सीरीज की एक मेथड डेवलप की है। उस सीरीज का नाम हमने आपको पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट में मैथमेटिक्स 1 का जो फर्स्ट यूनिट था डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें आपको इसका पूरा डेवलपमेंट बताया था। हाँ जी, एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स अब आ रहे हैं हम लोग टेलर्स ने जो मेथड डेवलप। हाँ बोलिए, पढ़न प्लीज। सर इसके पहले वाले एक बार फिर से बता देना। इसके पहले वाला, इसके पहले स्क्रीन। ओके, अलग अलग चलो बनी बेटू का ये रहा हमारा इसके पहले वाला स्क्रीन। मतलब एक आनी छे सिर्फ अगर मां अरे कोई एक स्टूडेंट है जिसने म्यूट नहीं वो किया है ऑफिस भी अपने जा आप जो को, वो ऑफिस भी छे वो काम भी करछे ना इंटीरियर में। कुछ दूसरी आवाज आ रही हाँ है। तो छे यार एक घर डिजाइन करना अच्छा था। Do not to be mute yourself. Whenever I ask a question, then only you mute yourself and you talk to me. Yes. So this is our first screen as the first title page, which we can say that कि what we are going to study in this chapter as a part 1. हम इस यूनिट के पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बेसिक मैंने बताया, और क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी मैंने बेसिक आपके सामने क्लियर किया। अब हम दूसरे पेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यस, टेलर सीरीज को स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एम राइट? ये स्टेप क्लियर है सभी को? सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? सोल्यूशन निकालने का मतलब होता है बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपने क्या लेके चले हैं प्रॉब्लम में? y डिपेंडेंट लेके चले हैं। यदि आप x लेके चलेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में x आएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपके ऊपर है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जब एग्जामिनर आपको दे रहा है तब आपको अलग से कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं, जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है उसी ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। तो मैं फिर से आपके सामने पिछला पेज बताने जा रहा हूं। ये क्लियर कर रहा था मैं आपको कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपने क्या लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम में डेरिवेटिव dy बाय dx के फॉर्म में शो अप है, तो इसलिए न्यूमरेटर वेरिएबल डिपेंडेंट लेना है और डिनोमिनेटर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट लेना है। तो हमें इसको आज सॉल्व करना है, मतलब सोल्यूशन निकालना, मतलब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू निकालना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में। कुछ चीजें बहुत कॉमन है जो हमें हमेशा याद रखना है, तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं गाइस। सबसे पहले स्टेप ये है, टेलर्स ने ये कहा कि सबसे पहले आपने डिसीजन लीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, y किसका फंक्शन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है तो x लिया। अब उसके बाद आपको जो इनिशियल सोल्यूशन दिया हुआ है, वो इनिशियल वैल्यू जो दे रखी है वो x की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो x0 दी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x0 को यहाँ पर जोड़ भी रहे हैं इसमें और घटा भी रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आप सभी को। y इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ही मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीजन अभी आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में क्लियर होगा, क्योंकि आपने टेलर्स के 3 डिफरेंट फॉर्म पढ़े हैं फर्स्ट सेमिस्टर में, फर्स्ट यूनिट में। याद करो जरा, टेलर्स के 3 फॉर्म होते हैं, उनमें से जो हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज होगा, जो हमारे को यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, वो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला फॉर्म है x0 प्लस h या x प्लस h या a प्लस h, फंक्शन ऑफ a प्लस h, जिसका हम एक्सपेंशन h की पावर में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास h की जगह हो गया है x माइनस x0 और x0 की जगह x की जगह आपका x0 है, राइट। तो लिखिए जरा सभी लोग अपनी कॉपी में टेलर सीरीज। ऐसा फंक्शन है आपके पास f ऑफ x0, इस ये दो लास्ट की 2 टर्म है, इस पूरे को h मान लीजिए, ये जो आखिरी की 2 टर्म है इसको h मान लीजिए। a प्लस h, f ऑफ, और y का मतलब f मतलब फंक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन। लिखूं मैं आपके सामने बोल के बता रहा हूं, फिर यहाँ पर आपके सामने डिक्टेट करूंगा। फर्स्ट टर्म होती है f ऑफ x की, फिर दूसरी टर्म होती है h अपॉन फैक्टोरियल 1 f डेस ऑफ x, फिर तीसरी टर्म होती है बेटे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यूब। ऐसे ऐसे आगे आगे नंबर 1 बाय 1 आप नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ते जाते हैं, एड ऑन करते जाते हैं। तो गाइस पहला f ऑफ x की टर्म आएगी, x की जगह आपके पास x0 है, y ऑफ x0, f को y मान लेना है, क्योंकि f मतलब फंक्शन मींस डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका बेटे, y है, तो यहाँ पर y लिखा। तो पहली टर्म आएगी f ऑफ x की, f ऑफ x मतलब आपका x0, तो y ऑफ x0, फिर इसके बाद दूसरी टर्म मैंने h अपॉन फैक्टोरियल 1 बताया था, तो यहाँ पर h किसको लेना है, x माइनस x0, आखिरी की 2 टर्म है उसको h लेना है, तो x माइनस x0 अपॉन फैक्टोरियल 1। हमने यहाँ पर x0 इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हमारे को जो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है वो x0 से स्टार्ट करना है, इसलिए। यदि आपको सॉल्यूशन x से स्टार्ट करना होता तो आप फिर x लेते, आपको सॉल्यूशन a से स्टार्ट करना है तो आप a लेंगे, b से स्टार्ट करने का बोला है एग्जामिनर ने तो b से स्टार्ट करेंगे। जो भी इनिशियल वैल्यू दे रखी है बेटे वो आपको लेना है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को, इस टेक्निक्स को कॉमन बनाना चाहते हैं, एक जनरल फार्मूला के फॉर्म में स्टडी करना चाहते हैं, एक जनरल टेक्निक्स के फॉर्म में यूजफुल करना चाहते हैं। ओके, इसका इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि क्यों हमने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया है, एम राइट। तो इसलिए हमारा जो पहला टेलर्स का मेथड होता है उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। मींस अभी जब मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूँ, फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है, एम राइट। फिर मैं इस पर प्रॉब्लम आपके सामने अभी कुछ सेकंड में समझा दूंगा। तो x माइनस x0 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 f डेस ऑफ x, f डेस का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मींस y डेस ऑफ x0। फिर इसके बाद थर्ड टर्म आएगी x h स्क्वायर, h स्क्वायर मतलब x माइनस x0 अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डेस ऑफ x0। आपको केवल पहली 2 टर्म ध्यान रखना है, कोई भी सीरीज है उसकी यदि आप 2 टर्म याद रखते हैं तो उसकी n टर्म अपने आप लिख सकते हैं। इसी बात को आप
नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर x माइनस एक्स जीरो का होल क्यूब आएगा और इसी तरह से x माइनस एक्स जीरो की पावर 4 आएगी, ऐसे ही है आगे बढ़ती जाएगी। जब हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन यदि इनिशियल वैल्यू आपको 0 दी होगी, इनिशियली आपके पास x0 की वैल्यू यदि x0 होगी, तब उस केस में ये आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। y इक्वल टू y0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 y डेज ऑफ x0 और x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम लोग ए नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ टेलर सीरीज। ये था टेलर सीरीज का डेवलपमेंट। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। प्रॉब्लम आपके सामने है, सभी को स्क्रीन में प्रॉब्लम दिख गया होगा। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर रहा है, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए कौन सी इक्वेशन है, ये भी एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है, और डिग्री 1 है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, और आपके पास इनिशियल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल सोल्यूशन दे रखा है y ऑफ x0 इक्वल टू y0। ये हमेशा x0 की वैल्यू होगी और ये हमेशा y0 की वैल्यू होगी। इसको आपको x0 एज्यूम करना है, इसको y0 लेना है। करेक्ट 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तक जब तक आंसर आपको नहीं आ जाता तब तक हम लोग उतने नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में एड ऑन करेंगे। तो 5 टर्म के लिए जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, 5 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें आपको आपके सामने पहली 4 टर्म हमें उसमें नहीं तो 5 टर्म तो लेना ही पड़ती है। फर्स्ट 5 टर्म यदि आप टेलर सीरीज की यूटिलाइज करेंगे तो आपका आंसर 5 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ये है स्टार्टिंग स्टेप। अब हम इसके प्रॉब्लम करने की नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे, और साथ में एक और क्वेश्चन इसके साथ में एग्जामिनर ने पूछा है कि आप ना केवल जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब x बराबर 1.02 पे भी आपको इसका फाइनल वैल्यू निकालना है। तो हम ये जो आपके सामने फार्मूला भी मेथड बताया है, इसमें आपको ना केवल x की वैल्यू x0 की जगह 1 रखना है, साथ में x की जगह 1.02 भी रखना है। ठीक है, तो हम एक एक करके 1 बाय 1 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको ऑरली डिस्कशन किया एनालिसिस प्रॉब्लम का, सबसे पहले हम प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, उसको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे या आपको जो भी नोटबुक दी गई होगी उसमें आप पहले डिक्टेशन करेंगे। दिया हुआ है प्रॉब्लम ये विथ इनिशियल कंडीशन ये दिए, इसका मतलब इसका सिंबल हम लोग सिंबॉलिक वे में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू x0 इक्वल टू आपके पास 1 है, y इक्वल टू y0 है जिसकी वैल्यू आपके पास 2 है, और उसके बाद फिर आपको दिमाग में रखना है टेलर सीरीज का फार्मूला। टेलर सीरीज का फार्मूला, टेलर सीरीज की मेथड दिमाग में रखना है कि भाई टेलर सीरीज का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन करना होगा। तब इस स्टेप के बाद हम लोग 1 बाय 1 वो कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा आपका क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव। रख दीजिए वैल्यू x(y-1), फिर इसकी वैल्यू आपको इनिशियली आपको कैलकुलेट करना है x0 y0 पे, तो जहां पर x है उसकी जगह x0 रख देना है, y की जगह y0 रख देना है। बाकी कहीं कुछ इसमें डिस्टर्ब नहीं करना है। साइन फंक्शन दिया है, साइन लिखना है, लॉग है तो लॉग लेना है, जिस टाइप का सर का। हाँ जी बोलिए पढ़न सर, ये x0 y0 की वैल्यू देके रखनी है ना? हमेशा दी होगी बेटे। ये जो आपके सामने मैंने एक बार फिर से प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करते समय लिखा है, ये वैल्यू हमेशा दी होगी। इसी तरह का प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। हाँ, केवल यहाँ पर dy/ds के बाद में जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये बदलता रहेगा, और यहाँ पर ये आपके सामने कुछ वैल्यूज, ये जो इनिशियल वैल्यू है वो आपकी बदलती रहेगी, बाकी और कहीं से कहीं तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि एग्जामिनर को आपसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, पूछा है, तो वो डेफिनेटली उसका भाषा यही होगी, इसमें कुछ भी कहीं से कहीं तक कुछ करेक्शन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये पहली स्टेप है।
पहली स्टेप पूरे होते से हमें दिमाग में ये रखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करने के लिए एग्जामिनर ने बोला है, टेलर्स का बोला है,